सांधाना दुखावा माटे जहाँ सांधाना दुखावा होय हाँ इन्हें माटे बनाते हैं। बराबर। तो कोई भी सांधाना दुखावा पुराना में पुराना इससे निकल जाता है। वाह न लोग बहुत ठीक हुए हैं, हजारों लाखों। वाह तब तो ये 60 बरस हाल ही नहीं तो कहाँ था हाल न चला चाहे चौथे स्टेज में जाकर के हम लोग गारंटी नहीं देंगे। 1 2 3 तक ये इसका असर होता है। हाँ, हम पहले दूसरे में उसको बिल्कुल कहेंगे कि निकल जाएगा। बिल्कुल। फालिश मार गया तो नस भी लोक होंगी, अच्छा फिर हाथ नहीं चलेगा, पैर नहीं चलेगा, पैरालिसिस टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जिसको पैरालिसिस बोलते हाँ, हैं। पैरालिसिस अच्छा, कहते हैं अपनी भाषा अच्छा, में। अच्छा, उसके ये जोड़ों को खोल देगी। अच्छा। નમસ્કાર મિત્રો, અનમોલ મોતી ગુજરાતના અમારા કાર્યક્રમમાં હું અમીર ઓડેદરા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજના સમયમાં ફરી એક વખત તમારા આરોગ્યની ચિંતા સાથે, તમારા શરીરમાં ઊભા થયેલી તકલીફો કે રોગોની ચિંતા સાથે ફરી એક વખત અમે તમારી સામે હાજર થયા છે। આજના સમયમાં અમે અવારનવાર ઘણા બધા વિડીયોમાં તમને બતાવ્યું છે, ઘણા વિડીયોમાં જણાવ્યું છે કે જેવું તેવું ન ખાવાની વસ્તુ હું અને તમે પેટમાં પધરાવતા હોય, ન પીવાની વસ્તુ આપણા પેટમાં આપણે પીતા હોય, પરંતુ આજના સમયમાં આપણે જેમ કહીએ ને કે ખાવાની વસ્તુ જે આપણા જીવન માટે જરૂરી છે, જે જીવન જરૂરી આપણા ખોરાકમાં રેગ્યુલર જે આપણે જેનો ઉપયોગ કરતા હોય તેમાં ઘઉં, બાજરો, ચોખા, તેલ, છાશ, દૂધ, દહીં આવી બધી વસ્તુઓ બધું આવી જતું હોય, તે પણ આજે જંતુનાશક દવાઓ અને રાસાયણિક ખાતરોથી તેનું ઉત્પાદન કરી અને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક તેને ઝેર બનાવી દીધું છે। અને આવ્યા જ ખોરાકોના લીધે આપણા શરીરમાં અનેક એવા રોગો ઘર કરીને ગયા છે કે જે આપણને શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક બધી રીતના ખુંવાર કરી દે છે। પરંતુ આજે પણ આપણા વિસ્તારમાં એવા ઘણા બધા લોકો છે, એવા ઘણા બધા સાધુ સંતો મહાત્માઓ છે કે જે હિમાલયની અનેક વર્ષોની તપસ્યાઓ કરી, તેમના ગુરુ પાસેથી એવા જ્ઞાન અને અનુભવો મેળવી, એવી જડીબુટ્ટીઓથી એવી જાતના રોગોની દવાઓ કરે છે, એવી સારવારો 1 પણ રૂપિયાના ખર્ચ વગર મારી અને તમારા સુધી પહોંચાડે છે કે જે આપણા માટે ખરેખર એક વરદાનરૂપ સાબિત થાય છે, આપણા માટે તેમના એક મહત્વના આશીર્વાદ સાબિત થાય છે। મિત્રો, આજે અમે આવ્યા છે દ્વારકા જિલ્લાના એક નાના ગામમાં મહામંડલેશ્વર સ્વામી કૃષ્ણાનંદપુરી પુરીજી પાસે આવ્યા છે। તેમના ચરણોમાં આપણે વંદન કરી અને તેઓ જે આ દવાઓ છે, જે સારવાર છે તે કઈ રીતના કરે છે તે પણ જાણશું, તેમના પાસેથી થોડો સત્સંગ કરશું અને જીવનમાં મનુષ્યના અવતારમાં જે કંઈ મને અને તમને 84 લાખ યોનિમાંથી આ મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો છે તો તેને સાર્થક કઈ રીતના કરી શકીએ તે પણ આજે આપણે તન અને મન બંનેની શુદ્ધિ માટેના અમુક વાતો કરશું અને તેમની પાસેથી ઘણી બધી માહિતીઓ પણ મેળવશું। ગુરુજી, અમારા કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે। જય હો। સૌથી પહેલા તો આપનો જે આશ્રમ છે એનું લોકેશન કઈ જગ્યાએ આવેલો છે એની થોડીક માહિતી આપશો। આપણે यहाँ ઓખા મંડલ में બિલકુલ। ધરાસણવેલ ગામ છે હાજી। અને એ ગામડાની અંદર मैं आज बरसों से रहूँ છું, क्योंकि मैंने यहाँ 50-55 साल तो हो गई और 60 साल से मैं इस ओखा मंडल में रह रहा हूँ। पहले मैं दीवाडांडी पे रहता था, उधर ओखा की तरफ, फिर मैं इधर आया तो इधर भी मुझे 50 साल के ऊपर हो गए हैं, 60 साल मुझे ओखा मंडल में हो गए। भगवान की कृपा से ये दवाइयों का ज्ञान तो हमारी 3 पीढ़ी से आ रहा है, आज से नहीं है, क्योंकि पहले हमारे दादा गुरु थे वो भी देते थे, फिर हमारे गुरुजी थे वो भी देते थे, फिर हम लोग आए तो हम भी ये देते ही हैं। क्यों कि जो चीज़ लोप होने जा रही हैं और उन्हें जगाना हमारा धर्म हो चुका है। अगर हम इन चीज़ों को आज नहीं बताएंगे तो सब लोप हो जाएंगी। ये जड़ी बूटियाँ फिर किसी को मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि जब हम किसी को नहीं बताएंगे तो अगली पीढ़ी को पता नहीं लगेगा, हमारे लिए पहचान ही नहीं है कोई। हाँ, तो जब हम अगले होने वाली पीढ़ियों को बताएंगे तो फिर वो बेचारे किसी की आत्मा को देंगे और वो ठीक होगी, तो उसका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफ़ी है।
सबसे बड़ी चीज़ है आत्मा का आशीर्वाद, बिल्कुल। और वो आत्मा का आशीर्वाद परमात्मा का आशीर्वाद होता है। इसलिए ये जड़ी बूटी है, इनमें एक एक अनमोल जड़ी बूटी होती है। बिल्कुल। आज जो रखी हुई है दम्मा की है, ये दम की है। दम कहता श्वास। हाँ, बराबर ना? श्वास कहो कि दम कहो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दम वो चीज़ होता है हाँ जी। जो साला दम को ही लेके जाता है। सही बात है, सही बात है। समझे भाई? इसमें से मैंने हजारों आदमी बचाया होगा, वाह। और ये जंगल की बनाते हैं हम लोग। और ये आप जो भी इधर आते हैं उसको देते हैं? हाँ जी, बराबर? हाँ। बिल्कुल। ये तेल से हम जोड़ों के लिए बनाते हैं। ये हो गई दम की दवा। આ શરીરના સાંધાના દુખાવામાં जहाँ शानदाना दुखावा होए हाँ, इन्हें माटे बनाते हैं। बराबर। तो कोई भी शानदाना दुखावा पुराना में पुराना इससे निकल जाता है। वाह न लोग बहुत ठीक हुए हैं, हजारों लाखों। वाह। तब तो ये 60 बरस हाल ही नहीं तो कहाँ था हाल, न चला न क- नहीं तो 60 दिन में तो बंद हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। ये दो चीज हैं ये हम इन्हें उपयोग करते हैं कैंसर में। ખાસ हाँ, ગુરુજી પાસેથી સાંભળવા જેવી અને સમજવા જેવી વસ્તુ કે કેન્સર આજે આપણો વિસ્તાર ગુરુજી हाँ। કેન્સરને એમ કહેવાય કે આ कैंसर में गिराया हुआ है। बिल्कुल 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 हाँ, जगह ये केस मिल रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि खाना ऐसा हो गया है हाँ, कि लोगों को कैंसर, तो जो बेचारा बीड़ी भी नहीं पीता उसको भी हो जा रहा है। कहते हैं कि ये धुआं से उससे होता है, वास्तव में उससे होता था। ये सब राज रोग थे बिल्कुल और अब आम आदमी को हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये कैंसर में उपयोग करते हैं हम लोग। और ये कैंसर गुरुजी अनेक प्रकार का होता है। हाँ, कई हार्ट प्रकार का होता है, ब्लड का होता है। एक ब्लड कैंसर होता है, एक बोन कैंसर होता है, हाँ जी, और एक गले का कैंसर होता है। हाँ जी। कैंसर 3-4 प्रकार का मुंह होता का है। होता है। हाँ, मुंह का और गले का वो एक ही होता है। तो सब में ये यही दवा लागू पड़ती है या क्या होता है? नहीं, ये भी लागू पड़ती है, फिर और भी बनाते हैं भाई। अच्छा, जैसा कैंसर है वैसी दवा वो उसको देते हैं। उसके साथ साथ और चलते हैं। कैंसर में खास बात ऐसी होती है हाँ, कि कौन से स्टेज तक ये दवा लागू पड़ती है? ये दवा चौथे स्टेज में जा करके हम लोग गारंटी नहीं देंगे। 1 2 3 तक ये इसका असर होता है। हाँ, हम पहले दूसरे में उसको बिल्कुल कहेंगे कि निकल जाएगा, बिल्कुल। पर जब आदमी तीसरे से ऊपर जाकर चौथे में पहुंच जाता है, हाँ फिर हम मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे उसका भाग्य है। 1 2 स्टेज के लिए ये दवा बहुत कामयाब होती है। और सबसे बड़ी बात ये सब वनस्पतियों की है। ये गुरुजी ने जैसे बोले हैं गुरुजी कि 3 पीढ़ियों से ये उसको इसका अध्ययन किया है, उसको इसका एक्सपीरियंस है, इसका अनुभव है, और उसके बाद ही ये जड़ी बूटी सब लगा के हमारे लोगों के लिए जो समाज के साथ रह के जी रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए गुरुजी रात दिन एक करके ये सब जड़ी बूटी बना रहे हैं। गुरुजी अब आगे ये वाला ये जैसे कि आप नस भी लोक हो जाती हैं हाँ जी शरीर में, और किसी को फालिश मार जाता है, तो फालिश के लिए ये बहुत कामयाब है। इसका मतलब मैं नहीं समझा। इसको फालिश मार गया तो नस भी लोक होंगी, अच्छा, फिर हाथ नहीं चलेगा, पैर नहीं चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जिसको पैरालिसिस हाँ, पैरालिसिस कहते हैं अपनी भाषा में। अच्छा, उसके ये जोड़ों को खोल देगी, अच्छा और ये गारंटी से खोल देगी, ये भी नहीं है। ऐसा? हाँ जी। ऐसा नहीं है कि ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, ट्राई फ्राई करो या ना करो, मैं तो 60 साल से ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल। और ये जंगल की दवा है। वाह इसको हम अपने घर ही फूंक के बनाते हैं। वाह। हाँ, और ये जो अपने वो कहते हैं ना, लोही पड़ता है पीछे से, हाँ। बवासीर बस क्या है, मस्से हो जाते हैं हरस के, बस बिल्कुल हरस के जो मस्से हो जाते हैं और लोही पड़ता होगा, बिल्कुल। तो इसको बारीक कर लेते हैं। वाह। जो खाने वाले भी हाँ जी मिक्सचर में डाल देंगे तो बारीक हो जाएगी। हाँ दही एक वाटका में लेंगे इतनी, हाँ जी उसमें 1.25 चम्मच डाल देंगे, डाल के हिला के उसको पी जाएंगे, और इससे लोही बंद हो जाएगा, वाह। और धीरे धीरे करके हरस खत्म हो खत्म जाएगी। हो जाएगी। बहुत लोगों को, नहीं तो काटने के बाद भी हरस फेर के आ जाती है। बिल्कुल। ऑपरेशन करने के बाद भी कितने लोग आते हैं मेरे हाँ, पास। तो बार बार तकलीफ हो जाती है। हाँ, तो ये हरस की दवा है। ये रही, ये डायबिटीज है, हम इसे डायबिटीज में देते हैं। वाह। इसको, इसमें हम करेला की भूकी मिलाते हैं। हाँ
करेलानी भूकी 200 ग्राम, बराबर। 100 ग्राम इसमें हम सतावरी डालेंगे, वाह, और करेला की भूकी और सतावरी दोनों को मिलाकर उसको देंगे। अगर उससे वो गला गला रुक जाएगी, बिल्कुल। वहीं थम जाएगी। फिर एक जंगल की दवा और आती है, हाँ, उसके बीज आते हैं। अगर किसी को बहुत डेंजर है तो हम उसे वो बीज देंगे। वाह, डेंजर पर बीज कड़वा लगता है, बीज इतना सही होता है, बिल्कुल। उसको खाने से डायबिटीज भागने लगेगी, घटने लगेगी तुरंत। और ज़्यादा नहीं, 1 के 2 ही बीज देंगे उसे उसका, और वो बीज को निकालेंगे तो इतना सा ही निकलेगा, बिल्कुल। और वो इतना सा बीज सारे मुंह को कड़वा बना देगा। और ये उसकी दवा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप किसी अस्पताल में डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर से सारवार ले रहे हैं, उसकी दवा ले रहे हैं, तो उसके साथ इसको ले सकते हैं क्या? उसको इसका नियम है हाँ, कि साथ साथ नहीं ले सकते आप, अच्छा। उसे अपने 1-1.5 घंटे के बाद दे सकते मतलब हैं, ऐसा क्योंकि मेरी दवाई कोई रिडक्शन नहीं करे। ऐसा नहीं है कि वो दवा बंद करनी, ऐसी नहीं है। ना करो या ना करो, बिल्कुल, उसे जब हम कितने दिन से ले रहे हैं बिल्कुल, उसके हिसाब ऊपर से उसे छुड़वाया जाता है, बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आ दवा तुम्हें असर करने लगी, हाँ, तब हम उस दवा को कम कराते चले हाँ, जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप 6 महीना तो ले रहे हो, कि साल भर से ले रहे हो, कि 2 साल से ले रहे हो, और हम क्या एकदम उसको छोड़ दे, हाँ। ये दवाई के 1 दिन में लागू नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसको करीबन 7-8 दिन लगेंगे बिल्कुल। शरीर में लागू पड़ने पर। जैसे ये लागू पड़ेगी वैसे उसको छोड़ते वो चले, छोड़ दीजिए, बराबर, और ये पकड़ लेगी, बिल्कुल, और ये जड़ में से काट देगी, वो काटेगी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी चीज़ है, वो नहीं काटेगी, इसे दम्मा को नहीं काटेगी। ये पथरी है, वाह, पथरी आपकी ये कहीं से निकाल लेगी, पित्तेशय में भी निकाल लेगी, वाह, नहीं तो पित्तेशय की पथरी डॉक्टर से नहीं निकलती, बिल्कुल। वो पित्तेशय ही काट देगा आपका, समझ गए ना, उगड़ेगी नहीं। ये कितने टाइम में इसका रिजल्ट मिलता है? इसका रिजल्ट 8 दिन में, 8 दिन में। हाँ 8 दिन में आपका जो दुखावा उखावे सब बंद कर देगी। आपको जैसे हमने बोला इतने सारे रोग की दवा, आप ये तो कम है, अभी तो बहुत रोगों अभी की तो है। ये तो सिर्फ हमने सैंपल दिया है। हाँ, गुरु जी के पास कोई ऐसा दुख नहीं है, कोई ऐसा रोग नहीं है जिसकी दवा नहीं है। वो हमारे गुरु की कृपा है, बिल्कुल। और अगर आपसे और कोई गुरु मिलना की चाहता कृपा है, और भगवान की कृपा से ही ये सब चलता है। आपसे कोई मिलना चाह रहा है, ये दवा लेने आना चाह रहा है, हाँ, तो आपका कांटेक्ट कैसे करें और कैसे मिले, आप मिलेंगे कैसे? आजकल तो सरल हो गया है, मोबाइल फोन में, मोबाइल से सरल हो गया है। और आपको फोन करके हाँ, आना, किसी को भी आना है तो हाँ, बराबर है, फोन करके ही आती है पब्लिक। बराबर है। तो हम स्क्रीन पे आपका नंबर भी देंगे उसको, हाँ, बराबर है। हाँ, और अगर आप बोल के देना चाह रहे हैं तो बोल के भी दे सकते हैं अपना हाँ, नंबर। 9741 39 41 39 39 7 7 8 8 9 9 हो गया 10 आंकड़ा गुरु जी का पूरा। नंबर है। आप ऐसी कोई भी बीमारी से परेशान है तो सबसे पहले तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर दम, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, क्या क्या बोलो, सोरियासिस, हाँ, सोरियासिस भी, उस सब की दवा गुरुजी ऐसे दे रहे हैं। और जिनके मैं परहेज बताऊंगा वो परहेज दर्दी को करना पड़ेगा। और एज में ज्यादा, जैसे सोरियासिस है, आपको मैं दवा दूंगा और आप खटाई खाते रहेंगे तो आपका सोरियासिस हटेगा नहीं, क्योंकि उससे वो पैदा होता है, बिल्कुल, और उसी को आप खा रहे हैं, तो क्या करेगी दवाई? आपको खटाई छोड़ देना ही पड़ेगा। उसमें एक ही चीज़ खतरनाक है, खटाई, बिल्कुल, और ये दवा खाएगा तो 100% आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। ये दम्मा है, हाँ, इसमें तेल, दूध, दही और छाछ सबको छोड़ देगा ना, तो आप मजबूत हो जाएंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। आपका मन ऐसा लगेगा कि मैं सब छोड़ दूँगा, मेरे खाने का क्या होगा। आप इसे आप जो है हरी हरी सब्जी खाओ, बिल्कुल, उसमें थोड़ा मिर्चा गेरो, थोड़ा नमक गेरो, जिससे आपको अच्छी लगे। तेल मत गेरो, साले में क्या है,
थोड़ा सा गिर तो जरा अच्छा सा जिसमें बघार जैसा लग जाए उसको। ऐसा नहीं कि तुम्हारे तो भाई गुजरात तो भगवान बचाए हो। गुजरात में जितना तेल एक गुजरात खाती है ना, इतना पूरा भारत खाता है। ऐसा? हाँ जी। तो पूरे भारत को एक साइड पे खड़ा कर दो और गुजरात को एक साइड पे खड़ा कर दो तो तेल खाने में गुजरात ही बढ़ेगी। और तभी बहुत परेशानियों का सामना कर रही है। वो करेगी इसलिए क्योंकि ये खुशक तेल हैं सारे जिन्हें खा रही है। इनमें कोई ताकत नहीं है इन तेलों में। ये खुशक तेल है, बीमारी पैदा करेगा। तो ये सब जो चीज़ जो खाएंगे चिकनाई वाली, ये चिकनाई से दमा पैदा होता है और आप उसे चिकनाई दोगे तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और अगर आपने उसे छोड़ा थोड़े दिन तो ये दवाई उसे पकड़ लेगी। पकड़ने के बाद मिटा देगी। फिर तो दूध खाइए, दही खाइए, छाछ खाइए, जो खाना खाइए, थोड़े दिन छोड़िए। हाँ जी। બહુ સારી વાતો ગુરુજી પાસેથી આપણે એમ થાય કે કદાચ આખો દિવસ ગુરુજી હારે વાતો કર્યા કરીએ તો પણ તેમનો સત્સંગ, તેમની આ જે વાતો છે તે પૂરી નથી થવાની। પરંતુ અમે તમને એમના નંબર આપ્યા છે। તમારી બીમારીઓથી છુટકારો મેળવવા માટે કદાચ આનાથી વિશેષ બીજું કાંઈ ના હોય અને ગુરુજી પણ સતત આપણા માટે, આપણા સમાજ માટે કંઈક ને કંઈક કરવા માટે તત્પર્ય છે। ગુરુજી, આપણે થોડો કંઈક સંદેશ આજના લોકોને, જે રહેણી કેણી છે, જે ખાણીપીણી છે, એના વિશે કંઈક બે શબ્દોમાં देखिए भाई, કાન जो પકડીને ઠપકો દેજો। એમને जो रोग है ये कारण एक और है कि जितनी ये दवाई हैं, હાજી, परहेज तो मांगती हैं देसी दवाई, બિલકુલ अने परहेज जो करेगा वो 100% उसको फायदा हो जाएगा। और जो परहेज ही नहीं करेगा तो क्या करोगे आप उसको? जिस चीज़ से वो पैदा हो रहा है उसी को आप खा रहे हैं। બિલકુલ तो उससे बचना है तो परहेजों को करना भी जरूरी है। और दवाई अपना काम करती है। दवाई तो जंगल में जो घास उगेगी ना, वो मैं बता दूंगा બિલકુલ कि ये कहाँ काम आएगी। अपने भोरंगड़ी उगती है यहाँ, હા, लंबी वाली, 6-7 रोग में काम आती है બિલકુલ एकली। पर आदमी जाने तो बधु होए, पर जे जानता नहीं उसके लिए तो घास ही है, वो બિલકુલ कांटा है वो। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई जितनी घास जड़ी उगती हैं, મને तो कोई लाग गया कि जो नहीं होगी, હા, बाकी तो बधी एवी છે કંઈક ને ક્યાંક આપણને ઉપયોગી છે। उपयोग आवेगी। ये बड़े बड़े झाड़ भी उपयोग आ रहे हैं। બિલકુલ ये बड़ला है, पीपड़ा है, नीमड़ा है, किसी को पकड़ ले। ये कनेर कड़ी है, ये भी कई रोगों में काम आती है। 100%। તમારી દ્રષ્ટિએ તમે એને કઈ રીતના મૂલવો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ। हाँ, जड़ी बूटी हैं ये। બિલકુલ अरे लक्ष्मण जब मूर्छित हो गया था હા, तो सुखैन वैद्य ने वहां बेच दिया पहाड़ पे हनुमान जी को, હા। और वो लेके आया और खड़ा कर दिया उसने वहां उसको। और उस टाइम ये विज्ञान संजीवनी मेडिकल बूटी। कुछ नहीं था। हाँ, संजीवनी बूटी ने वहीं खड़ा कर दिया था ना। हाँ, पर उनमें ताकत थी। हनुमान जी हर तो मकान का मकान उपाड़ लाते थे, और वो रावण के अंडर में थे सुखैन वैद्य, बिल्कुल तो वो हनुमान जी ला सकते थे। दूसरे की ताकत नहीं थी भाई, क्योंकि सब हनुमान जी नहीं है। अब जो है, और वैद्य किसी का नहीं होता। वैद्य का नियम है वो दर्दी, बिल्कुल एक ही लक्ष्य हो, पड़ा दुश्मन का हो। दुश्मनी दुश्मनी की जगह रहती है, लेकिन याद रखें उनसे दर्द ही दिखाई देता है बिल्कुल कि मुझे ये ठीक करना है। तुम दो आपस में लड़ रहे हो, मैं आपके पास ही रहता हूँ, लेकिन अगर आपके पास से मुझे उठा कर ले गया कोई, बिल्कुल तो मैं उसकी दवाई करूँगा। फिर आप मेरा जो भी करे मैं देख लूँ आगे, मरे या जीवे। फिर समझे भाई? तो ये वैद्य का नियम होता है। બહુ સરસ મજાની હા। વાતો કરી, બહુ સત્સંગ કર્યો અને આવી રીતના જ આવા નવા કામ કરતા રહો અને તમે પણ। और आज ये उखा मंडल में હાજી, पुराना अपने ही हैं। ये आश्रमी है। अब अपने यहीं दवा दी है, जब से दी हैं, और 60 बरस से यहीं दे रहा हूँ एक ही जगह। पर फिर बाद में तो बहुत हुई, नेट पर दे रहे हैं, उस पर दे रहे हैं। मैं कभी नेट के ऊपर दवा नहीं देता दवा। और हम हमारे नेट के ऊपर क्यों नहीं देता? कारण है हाँ, कि नेट के ऊपर तो वो आदमी दे जिसे अपनी दवाइयों पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल
जिससे विश्वास है कि ये दवाई मेरी सॉलिड काम करेगी जाए। और वो भी देगा जिसको पैसा चाहिए, हमको वो भी नहीं चाहिए। हमें तो लेता ही नहीं गाय ना। हमें जाहिरात की एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ये नहीं गाय की पेटी पड़ी है, कोई गेरे तो गेरे ना तो चला जा। है। अच्छा। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी को नहीं कहा कि तू 5 रुपया में गेर या मुझे दे। हाँ, कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा अब तक हाँ, 60 वर्ष में। भैया तू जा, भले कितने लोगों को तो मैंने अपने घर से उसे देकर भेजा है, भाड़ा ना हो बेचारे के पास, एक ओढ़ का हुई हराया मरता गिरता, जी मेरे पास भाड़ा नहीं है, तो मैं बाबा को भाई से कुछ दे देना, बेचारा घर तो पहुँचे हैं। खाना भी खिलाते हैं, टाइम हो जाता है कि भाई इतने दर्दी बचे हुए हैं भैया, इन्हें खाना खिला दे जो। तो ये सब भगवान की कृपा से चल रहा है। बिल्कुल और एक बात और बताओ, संत की संपत्ति आते और जाते दिखती नहीं है, बिल्कुल वो किधर से आती है, वो किधर को जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। समझे भाई। तो ये संतों का खेल भगवान के ऊपर चलता है। बिल्कुल। અને हाँ, આવા નવા આશીર્વાદ તમે બધા સમાજ ઉપર બનાવી રાખો। ભગવાનના ગુરુદેવના આશીર્વાદ સદાય તમારી ઉપર બની રહે, बस ये गुरु की कृपा। પ્રાર્થના કરશું। અને તમને કોઈને આવા અસાધ્ય રોગો હોય તો ગુરુજી ચપટીમાં આ બધા રોગ મટાડે છે અને ખૂબ સરસ મજાની સારવાર કરે છે। તો આ માટે અમે તમને ગુરુજીના નંબર પણ આપ્યા છે। દ્વારકા તાલુકો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા देवभूमि द्वारका, અને ગામનું નામ છે धासड़वेल, ધાસણવેલ। धासड़वेल। ગુરુજીને આપ આવી શકો છો, મળી શકો છો। તેમનો આશ્રમ અહીંયા આવેલો છે અને ખૂબ સરસ મજાને દ્વારકાધીશના દર્શન થઈ જાય। मैं द्वारका में भी ये बना सकता था, યા, पर दवा द्वारका में कोई दवा तो मिलेगी नहीं, शहर में कौन ढूंढवा जाऊँ, એટલે मैं जंगल में ही बैठा हूँ, બેઠો। અને આ બાજુ क्योंकि यहाँ નાગેશ્વર- सारी दवाइयाँ मुझे जंगल में मिल जाती આ है। બાજુ નાગેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્ય, હા, આ બાજુ દ્વારકાધીશનું દેશના। સાનિધ્ય, વચ્ચે ગુરુજીનો આશ્રમ છે। તમે દર્શન કરવા આવજો। बेनाथ बेनाथ ना बीच में बैठा हाँ, अपना, बस। इंगे भोलानाथ बैठा, इंगे द्वारकानाथ बैठा है। कभी द्वारकानाथ मथुरा घूमवा जाता हो हाँ। तो इंगला वाला आँख खोल के आशीर्वाद दे देगा भाई। अने कभी वो आँख बीच के बैठ गए भोलानाथ से, वो तो समाधि में, तो इंगे द्वारकानाथ अपने ने आशीर्वाद दे देता है। दोनों के बीच में बैठे अपने इन आशीर्वाद से हाल ले और छे। ये दोनों के आशीर्वाद से जो भी बस। समाज का कल्याण हो सकता होता है वो इन करने दोनों की के कोशिश आशीर्वाद करें। से ही होता है। और सबसे अपने- पहले खुशी की बात गुरुजी हमारे लिए ये है कि नेट पे, फोन पे, सोशल मीडिया में पहली बार गुरुजी ने- आज जीवन का पहली बार है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत गुरुजी को हमने कन्वेंस किया, तभी हमारे साथ बैठे हैं। आपने इतना आराम कर रहे थे, अब दोपहर को 2 बजे आकर हमने आपको जगाया है, वो तो कोई थोड़ा बात- कष्ट दिया, हमें माफ करना। और कष्ट तो हमारा ये परंपरा से चला आ रहा, हम इसको कष्ट नहीं मानते। हम एक इंसान का जीवन देखते हैं कि भगवान ये बच जाए तो इसकी आत्मा आशीर्वाद देंगी, वही चाहिए बस। हमें उसका कोई धन संपत्ति किसी का नहीं चाहिए। धन तो हम झाड़वा खाए के भी जी लेंगे,